Good morning, student. In our last class, we finished exercise 2.3 and today we start exercise 2.4. In this exercise, questions are given in the form of the statement. First, we frame the equation and after this, we will solve this equation. The first question of the exercise is, Amina think of a number. Amina ने कोई नंबर सोचा and subtract 5/2 from a और उस नंबर में से 5/2 को subtract किया. C multiply the result by a जो डिफरेंस मिला उसने 1 से मल्टीप्लाई किया. फाइनली C obtained 3 times the same number. C for जो नंबर उसने सोचा था उसका उसे 3 टाइम्स मिला. वो नंबर क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 2.2 में भी किया था. उसमें भी वही था, कोई नंबर है जिसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2, so you obtain 1/8. Same way the question is given in this. First we let this number, let Amina think a number. जो अमीना ने नंबर थिंक किया है वो क्या दिया हमने x. अब अपन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस नंबर में से जब वो 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है and the result is multiplied by 8, so she obtained 3 times of that number. जो उसने सोचा था उसको कितना टाइम्स मिला? 3 times. Now we solve this equation. Multiply 8 into the bracket, that is 5/2 into 8 equal 3x. यहाँ से कैंसिल होगा. 5 4 जा 20 equal 3x. In this type of question, first we find the equation and after this we will find out the solution, that is value of the variable. 8x minus 3x equal 20. वेरिएबल को अपन LHS साइड पे रखा, कांस्टेंट वैल्यू को अपन RHS साइड पे ले गए. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया 8x minus 3x we obtain 5x. 8x minus 3x we obtain 5x equal 20. So x equal to 20 upon 5, that is 4. So the value of the variable is 4. जो वैल्यू आई वेरिएबल की वो क्या है 4 और 4 को अपन ने क्या लिया था x. जो नंबर अमीना ने सोचा था therefore the number is 4. If we put the 4 in this equation, 8 4 is 32 minus 20. 32 में से 20 minus किया we get 12 and 4 3s are 12. That is LHS is equal to RHS at x equal 4. x equal 4 का जो LHS साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? RHS साइड के. This way we will find out the value of variable in remaining question also. Now see the next question of the exercise. What they say in this question, a positive number is 5 times the another number. एक जो पॉजिटिव नंबर है वो अनदर नंबर का 5 टाइम्स है. दैट इज मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे. if 21 is added to both the number, यदि दोनों नंबर में 21 को ऐड किया then one of the new number become twice the other new number. तो जो नया नंबर बनेगा वो उसका क्या होगा? twice होगा. what are the numbers? नंबर्स क्या है? तो यहाँ पर भी सबसे पहले अपन क्या लेंगे? another number, let number vx. So the positive number, तो जो पॉजिटिव नंबर होगा वो कितना होगा? So positive number इक्वल इसका 5 टाइम्स था, that is 5x. Now we see according to question के अकॉर्डिंग क्या था कि according to question what they say, add 21 to both the side. या 21 अगर दोनों नंबर में ऐड करें तो जो नया नंबर है वो उसका क्या होगा? twice. ठीक है, जो नंबर क्या बचा उसका twice, पहले 5 टाइम था. नाउ वी सी 5x प्लस 21 को का मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 42. LHS साइड वेरिएबल टर्म को RHS साइड पर कांस्टेंट टर्म को रखें. 5x minus 2x 3x and 42 minus 21 21. So x equal to 21 upon
3, that is x equal to 7. Finally, we get the value of the variable, that is x equal 7. It's said to be the solution. And what we left to x? Another number. x अपन ने किसको लिया था? एक another number को, that is therefore the numbers are, वो numbers क्या होंगे? therefore the number are 7 and another a positive number is 5 times the another number. Another number 7 आएगा तो जो कितना आएगा? 5 into 7, that is 35. So the numbers are 7 and 35. पहले अपन इक्वेशन को फ्रेम किया, हमने बोला एक another number है, पॉजिटिव नंबर उसका 5 टाइम है, तो another number को x लिया, पॉजिटिव नंबर को उसका 5 टाइम लिया, 21 को दोनों साइड ऐड किया, तो ये कितना हुआ? ट्वाइस को 2 रखा. सॉल्व करने पर we get the value of x is 7. So another number we get x, so that is 7 and positive number, that is 5 times 7 5s are 35. Now see the question number 5. This is one of the most important question of this chapter. Sum of the two digit of a two digit number. दो डिजिट का कोई नंबर है, दो डिजिट का जो सम है वो कितना है? 9. If we let 5 4 54, इनका सम करेंगे क्या आएगा? 9. फिर उन्होंने बोला कि अपन डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा? 45. अब जो डिफरेंस आ रहा है इनका वो कितना आ रहा है? 27. यहाँ भी नहीं आ रहा, लेकिन अपन जो लेंगे वो कितना आएगा? 27. व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? जो दो डिजिट का नंबर है वो क्या होगा? जो पूछा हमने. नाउ वी लेट, पहले अपन देखें वंस प्लेस को, फिर देखेंगे अपन टेंस प्लेस को. लेट दो डिजिट का नंबर है तो लेट दी वंस प्लेस डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर. जो दो डिजिट का नंबर है उसकी जो वंस प्लेस डिजिट है वो कितनी है? टू डिजिट्स नंबर vx. यदि वंस प्लेस x हुई तो टेंस प्लेस क्या होगी? सो the tens place digit, so the tens place की डिजिट है वो क्या होगी? 9 minus x. एक x है, जैसे यहाँ पे 4 है वंस प्लेस पे, तो टेंस प्लेस पे क्या आएगा? 9 minus 4, that is 5. टेंस प्लेस पे क्या आएगा? 9 minus 4, that is 5. तो हमने वंस प्लेस पे x लिया तो टेंस प्लेस पे क्या आएगा? 9 minus x. अब अपन को पता है कि टू डिजिट का नंबर बनता कैसे है? टू डिजिट नंबर यदि अपन बनाए तो कैसे बनेगा? यहाँ पे अपन देखें 54, तो 10 into 5 plus 4 कैसे बनता है? 10 into 5 plus 4, that is 54. तो यहाँ पर भी अपन देखें 10 into tens place digit प्लस वंस प्लेस डिजिट. वंस प्लेस डिजिट को क्या करना? ऐड करेंगे अपन उसमें, प्लस वंस प्लेस डिजिट. टेंस प्लेस की डिजिट और वंस प्लेस की डिजिट. यहाँ पर अपन देखें जो अपना नंबर है उसमें टेंस प्लेस पर क्या है? 9 minus x. क्या है? 9 minus x. और वंस प्लेस पे क्या है? x. वंस प्लेस डिजिट x, टेंस प्लेस डिजिट 9 minus x. यहाँ पर इसका अंदर सॉल्व करें अपन, सो वी गेट 90 minus 10x plus x, that is 90 minus 9x. कितना मिला? 90 minus 9x. और जो अपना नंबर है, जो कौन सा नंबर है? ओरिजिनल नंबर. क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बोला जो न्यू नंबर है, जो आपका न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से इंटरचेंज करने पर जो न्यू नंबर है दैट इज 27 ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर. जो आपका ओरिजिनल नंबर है उससे कितना ग्रेटर है? 27. और न्यू नंबर आपको बनेगा कैसे? इंटरचेंज करने पर डिजिट को अपन देखें कैसे बनेगा. वंस प्लेस की डिजिट कहां पे आ गई? टेंस प्लेस पे. और टेंस प्लेस की डिजिट कहां पहुंच गई? वंस प्लेस पे. जे बनी अपनी जे टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस. जे बनी अपने टू डिजिट का न्यू नंबर. अपना ओरिजिनल
9x। क्या है ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x, जी कितना आएगा जब इंटरचेंज करेंगे 27 ग्रेटर देन y 27। यहां पे सॉल्व करें इसको 10x प्लस 9 माइनस x 27 प्लस 90 माइनस 9x, यहां पे अपन सब्ट्रैक्ट कर दें 9x, यहां पे आएगा तो कितना आएगा प्लस का 9x इक्वल टू 27 और 90 कितना होगा 117 और यहां से अपना 9 जाएगा तो कितना होगा माइनस में, तो 9 18x इक्वल टू 108। कितना बचेगा जी 108, so x इक्वल टू 108 अपॉन 80, so the value of x is 6। What we get the value of x is 6 और x अपन ने कैसे लिया था वंस प्लेस डिजिट को, यदि अपन ओरिजिनल नंबर देखें what they ask what is the two digit number, therefore the two digit number is, यदि अपन इसमें पुट कर दें 90 minus 9 into 6 that is 90 minus 54, so we get 36। आंसर कितना हो गया अपना 36। यदि अपन इसको इंटरचेंज करें 36 को तो कितना आएगा 63 और इसका यदि अपन डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 27। कितना आएगा 27। 30 में से 6 गया 7, 5 में से 3 गया 2, which satisfy your condition। So the required number is 36। पहले हमने वंस प्लेस लिया, टेंस प्लेस जो दोनों का सम था वो कितना था 9, तो हमने माइनस किया, ओरिजिनल नंबर आया अपना। टू डिजिट का नंबर कैसे बनता है 10 into टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट। सेम वे we will do the next question also, so you will better understand how we form the two digit number and how we frame the condition according to question। Now see the next question, this is also like as the previous question। यहाँ पर भी 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट में से जो एक डिजिट है वो दूसरी डिजिट का कितना है 3 टाइम्स। एंड ये आपने x ली, यहाँ पर भी अपन वंस प्लेस और टेंस प्लेस में लें, let the वंस प्लेस digit of a 2 digit number, जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी जो वंस प्लेस की डिजिट है ऑफ अ 2 डिजिट नंबर vx। क्या लिया हमने x ली, तो जो टेंस प्लेस की डिजिट होगी वो कितनी होगी इसकी 3 टाइम्स। सो द टेंस प्लेस डिजिट digit equal 3x। इतना हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, अब आप इंटरचेंज कर दो, जो 3x था वो वंस टेंस प्लेस से वंस प्लेस पे जाएगा और वंस प्लेस पे x था वो कहां जाएगा टेंस प्लेस पे। एंड एट द रिजल्ट, तो जो आपको नंबर मिलेगा रिजल्टिंग नंबर, जब इंटरचेंज करोगे तो आपको एक न्यू नंबर मिलेगा, न्यू नंबर को यहां पर रिजल्टिंग नंबर बोला, उसको अपन ओरिजिनल नंबर से ऐड करेंगे। ऐड करने पर अपन को इक्वल में कितना मिलेगा 88। इक्वल में कितना मिलेगा आपको 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा जो अपन से यहां पे पूछा गया है। वंस प्लेस ली अपन ने, टेंस प्लेस ली, अब टू कितना नंबर है 2 डिजिट नंबर, वो कैसे बनेगा 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10 into टेंस प्लेस डिजिट, जो डिजिट टेंस प्लेस पे उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और वंस प्लेस डिजिट को अपन क्या करेंगे प्लस वंस प्लेस डिजिट। सो वी गेट 2 डिजिट नंबर। यहां पे अपना जो टेंस प्लेस पे है वो क्या है 3x और वंस प्लेस पे क्या है अपना x। सो वी गेट 30x प्लस x दैट इज 31x। और इसको अपन क्या बोलेंगे अपना ओरिजिनल नंबर, जिसको अपन के लिए क्या करना है फाइंड आउट व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको इंटरचेंज करोगे तो आपके लिए क्या मिलेगा न्यू नंबर, क्या बोला है न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर।
ओरिजिनल नंबर इक्वल 88। इंटरचेंज करेंगे में एक बार आपको जो नंबर मिलेगा दैट इज रिजल्टिंग नंबर, जिसको नेम दिया हमने क्या, न्यू नंबर। अब इंटरचेंज कर दो तो इंटरचेंज करने पे आपको जो न्यू नंबर मिलेगा दैट इज 10 × x प्लस 3x। जो 10s प्लेस पे था वो 1s पे गया, जो 1s पे था वो 10s प्लेस पे आया, मुझे आपका न्यू नंबर हुआ रिजल्टिंग नंबर प्लस 31x इक्वल 88। यहाँ पे इसको इनटू करेंगे 10x प्लस 3x तो कितना आएगा 13x प्लस 31x इक्वल टू 88। मल्टीप्लाई किया 10x 10 और 3 19, उन दोनों का सम किया सो वी गेट 42x इक्वल टू 88। दैट इज x इक्वल टू दैट इज नॉट 42 44, x इक्वल टू 88 अपॉन 44। 13 और 31 कितना होगा 44, 88 अपॉन 44, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो यहां से जो वैल्यू आएगी x की वो कितनी आएगी 2। द वैल्यू ऑफ x इज 2, देयरफॉर जब x की वैल्यू आ गई तो यहां पे अपन रखेंगे तो अपना ओरिजिनल नंबर भी आ जाएगा। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज therefore the original number is 31 into 2 that is 62। यदि आप इंटरचेंज करोगे डिजिट तो क्या मिलेगा 26 और सम करोगे तो क्या मिलेगा 88 which satisfy your condition। इंटरचेंज करने पर कितना आएगा 88। Now see the fifth question of the exercise. In this question, what they say, Subhu mother present age is 6 times Subhu present age. Subhu age 5 years from now will be 1/3 of his mother present age. What are their present age? जो Subhu की present age है उसकी mother की age उससे 6 times है और after 5 year 5 साल बाद जो age होगी, अभी present के बारे में बात हो रही है जो कि 6 टाइम है, 5 years from now will be 1/3 of his mother present age। सुबह की एज जो होगी वो मदर की प्रेजेंट एज से कितनी होगी 1/3। अपन को दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। सबसे पहले अपन लेट करेंगे किसकी एज को, सुबह की, क्योंकि उसके बाद अपन बता पाएंगे उसकी मदर्स की एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज निकालनी है तो अपन लेट किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुबह बी एक्स ईयर। कितनी है x year, so the present age of his mother, age of his mother कितनी होगी 6 टाइम उसके 6x। अब 5 इयर्स के बाद जो सुबह की एज होगी वो कितनी होगी x + 5। नाउ वी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी होगी कितनी होगी सुबह की एज x + 5 जो कि उसकी मदर की प्रेजेंट एज से कितनी होगी 1/3। इट इज 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, जो कि मदर की प्रेजेंट एज की कितनी है 1/3। यहां से अपन सॉल्व करें 3 × 2 = 6, सो वी गेट x + 5 इक्वल 2x, सो वी गेट 5 इक्वल 2x - x। सो therefore x equal to 5। 2x में से x लिया क्या आया 5 और x अपन ने लिया किसको था सुबह की प्रेजेंट एज को। मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी इसकी 6 टाइम दैट इज 30। 5 साल बाद के बारे में बात हो रही है तो क्या करते हैं अपन प्लस, प्रेजेंट में 10 है तो 5 इयर्स के बाद कितनी होगी 15। therefore the present age of and his mother is 5 years and 6 × 5 that is 30 years
रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से पहली जो एज है वो सुबह की है, बाद वाली एज जो है वो किसकी है, उसकी मदर की। यहाँ पे यदि अपन चाहे तो पुट करके देख भी सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 5 + 5 दैट मींस 10 और 6x 1/3 of 30 that is 10. So we get LHS equal RHS at x equal 5. Now see the next question of the exercise. There is a narrow rectangular plot. एक सकरा एक rectangular plot है जिसकी जो डायमेंशन दी गई है वो कितनी है 11:4। जी यदि अपन 11:4 लें, जब रेशियो आता तो अपन क्या लेंगे 11x और 4x। लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो दिया था दैट इज 11:4। अब हमने जो कंडीशन दी है एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, 100 रुपीस पर मीटर के हिसाब से, जैसे कि 1 मीटर है तो इसका जो कॉस्ट है फेंसिंग का हमारा मतलब बाउंड्री में क्या लग रहा है बाय या बाउंड्री उठ रही है यहाँ पे, तो यहाँ जो टोटल खर्च आया, टोटल कॉस्ट आया दैट इज 75,000। कितना आया 75,000 टू फेंस द प्लॉट। अपन को इसकी जो 11x जो दिया है डायमेंशन निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अभी रेशियो में दिया है, अपन को उसको मीटर में बताना कि कितना होगा। पहले अपन इसकी क्या निकालेंगे पेरीमीटर एंड आफ्टर दिस वी विल फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस प्लॉट। सो लेट सबसे पहले अपन ने लेट किया, लेट द लेंथ एंड breadth of the rectangular plot be 11x and 4x respectively। 11:4 दिया था लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो, उसमें अपन ने लिया 11 और 4, ठीक है 11 और 4 x के साथ लिया। अब अपन को पता पेरीमीटर अपन कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। हाउ वी फाइंड आउट, वी विल फाइंड आउट बाय द फार्मूला 2 * n + b। लेकिन यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अपन को पर मीटर का खर्चा दिया है और टोटल दिया है, तो इस टोटल को अपन पर मीटर से जब डिवाइड करेंगे तो वी गेट 750। कितना मिलेगा 750। और जी क्या होगा इसका पेरीमीटर 750 है, मतलब पूरी बाउंड्री का जो सम है वो कितना है 750 मीटर। यदि अपन इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन वी गेट 75,000 जो टोटल खर्चा आएगा। सो बाय दिस वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इक्वल टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का जो खर्चा आया वो, तो यहां से अपना जो पेरीमीटर आएगा टोटल खर्चा कितना है 75,000 और जी कितना है अपना 100 रुपीस पर मीटर। तो पर मीटर कहां चला जाएगा ऊपर, रुपीस दोनों क्या हो गए कैंसिल। सो वी कैन पेरीमीटर इज 750 मीटर, 750 मीटर। तो देखें पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट जो कि किस फॉर्म में है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 * लेंथ + ब्रेड्थ। अब यहां पर जो अपना पेरीमीटर है वो कितना है 750 मीटर और लेंथ है जो कितनी है 11x और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है 4x दैट इज 750। 11 और 4 कितना आएगा 11 और 4 15x। अपन इसको डबल कर दें तो कितना आएगा 30x। सो द वैल्यू ऑफ x इज 750 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 और 25 3 जा 75। कितना होगा 25 3 जा 75। तो कितना आ गया x की वैल्यू से 25। therefore
द डायमेंशन, क्या पूछा गया है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट are 11 into 25, that is 11 5 to 55 का 5 carry, 11 2 का 22, 5 carry का 27, and 4 into 25, that is 100 meter, that is 100 meter. 275 plus 100, 275 plus 100, that is 375 into 2, so we get 5 to the 10 का 0, 1 carry, 5 1 carry, 3 to the 6 और 1 7, 750 क्या आया अपना पेरीमीटर, 750 पेरीमीटर आया और पर मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना है 100, so we get 75,000, जो टोटल खर्चा आ रहा वो आ गया. So this way we will also check our answer. कैसे अपन अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं. Now see the next question. The question is lengthy. The solution will also be lengthy. Person buy two kinds of cloth material for school uniform. School uniform के लिए उसके साइड और ट्राउजर का 2 काइंड का मटेरियल खरीदा. जो कॉस्ट थी वो 50 रुपीस पर मीटर थी साइड की, और जो ट्राउजर का कॉस्ट था दैट इज 90 रुपीस पर मीटर. अब यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है, every 3 meter of side material, every 3 meter of side material he buy 2 meter of trouser material. हर 3 मीटर साइड पर वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीद सकता था या खरीदा था. जो रेशियो था वो कितना था 3:2. he sell the material at 12% and 10% profit. जो उसने मटेरियल बेचा था वो 12% और 10% प्रॉफिट पे बेचा था. पहला वाला जैसे साइड का है 12% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा ट्राउजर का है जो उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा, और जो उसकी टोटल सेलिंग प्राइस थी दैट इज 36,000. कंबाइंड सेलिंग प्राइस है साइड प्लस ट्राउजर की. अपन को निकालना क्या है, ओनली ट्राउजर मटेरियल का. नाउ वी सॉल्व. यहां पे सबसे पहले हम लेंगे रेशियो को. लेट द रेशियो between side material and trouser material that we buy V 3x and 2x respectively. उसने मान लो अपन ने लिया 3:2. क्वेश्चन में दिया गया कि हर एक साइड की 3 मीटर पर कितना हुआ है ट्राउजर का 2. अब यहां से अपन दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस निकालेंगे. टोटल सेलिंग प्राइस अपन को दिया है 36,000. वहां से अपन निकालेंगे x की वैल्यू. द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइड मटेरियल का जो कॉस्ट प्राइस है रुपीस 50 पर मीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है, रुपीस 50 पर मीटर, और लिया कितना है 3x मीटर. तो पर मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, यहां पर बचा अपने कितना अपना 3x. सो द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 150x. कितना आया 150x. देयरफॉर द सेलिंग प्राइस of side material जो बेच रहा था वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे था 12% प्रॉफिट पे. एट 12% प्रॉफिट या 12% गेन, प्रॉफिट भी लिख सकते हैं अगेन एट 12% प्रॉफिट. तो यहां पे फॉर्मूला बनता है अपना क्या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और परसेंट की वजह से नीचे क्या आता है 100 इनटू सीपी. तो यहां से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 112 अपॉन 100. परसेंट
5 2 जा 10 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 56। तो अपने यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आया 6 3 जा 18 का ये 1 कैरी 5 3 जा 15 और 1 16 और x का आ जाएगा x कितना आया 168x जे आ गया अपना क्या सेलिंग प्राइस 12% प्रॉफिट पे। अब सेम वे वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउजर मटेरियल देन सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। नाउ the cost price of trouser material कितनी होगी इसकी रुपीस। यहाँ पे जो था इसका 90 रुपीस पर मीटर कितना था 90 रुपीस पर मीटर और लिया कितना जैसे उसमें रेशियो में मैंने लिया था 2x तो पर मीटर 6 का मीटर कैंसिल हुआ हाउ मच वी गेट 90 into 2 that is 180 कितना आ गया 180। Therefore, इसकी भी अपन सेलिंग प्राइस निकालेंगे। Therefore, the selling price of trouser material जो कि उसमें कितनी परसेंट प्रॉफिट पे बेचा था 10% प्रॉफिट एट 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सीपी लॉस के केस में अपन माइनस करते हैं प्रॉफिट के केस में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 इनटू 180 x 0 से 0 बस कैंसिल करना है यहाँ पे 11 8 जा 88 का 8 कैरी 11 बन जा 11 8 कैरी का आ जाएगा 90 198 x 11 8 जा 88 का 8 कैरी 11 बन जा 11 8 कैरी का 90 हो जाएगा 198x। अब अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितनी रहेगी उसकी टोटल सेल 36,600 और यहाँ से जो उसकी सेलिंग प्राइस आई साइड मटेरियल की डेट इज 168x और ट्राउजर मटेरियल की डेट इज 198x जो कि कितने के इक्वल होगी 36,600। यहाँ से इन दोनों का अपन सम करें सो वी गेट 366 8 और 8 60 का 6 1 कैरी 9 1 10 60 का 6 1 कैरी 1 2 3 x equal to 36,000। so the value of x यहाँ पे जाएगा 366,000 है 36,600 तो यहाँ पर जब अपन डिवाइड करेंगे सो वी गेट 100 we get the value of x is 100। कितनी मिलेगी x की वैल्यू 100। अपन से पूछा क्या था ओनली ट्राउजर मटेरियल सो therefore Hasan got what 2x लिया था that is 2 into 100 that is 200 meters of trouser material। सिर्फ ट्राउजर मटेरियल का पूछा था तो कितना आ गया 200 मीटर। यहाँ से 366 जाएगा 36,600 से कैंसिल हुआ क्या बचेगा ओनली x और अपन ने जो लिया था ट्राउजर मटेरियल को कितना था 2x सो आंसर इज 200 मीटर। दोनों का पहले कॉस्ट प्राइस निकाला दोनों का सेलिंग प्राइस निकाला उसके बाद दोनों का जो सेलिंग प्राइस का सम था वो अपन को क्वेश्चन ऑलरेडी दिया था दैट इज 36,600। सम करने पर अपन को x की वैल्यू आई 100 और रेशियो था अपना 3x to x 3x साइड का 2x ट्राउजर का वहां से अपना आंसर आएगा 200 मीटर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इन दिस क्वेश्चन दे आस्क टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। क्या पूछा है इन्होंने एक हेड का जो झुंड है उसमें कितनी हिरण है वो पूछा है। अब इन्होंने कहा क्या है व्हाट दे से हाफ ऑफ अ डियर ऑफ इन अ हर्ड जो हर्ड है डियर का उसमें से जो हाफ है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड में वो क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग। जो बचे हुए हाफ है उसका 3/4 बचे हुए जो हाफ है उसका 3/4 क्या कर रहे हैं वहां पे प्लेन क्या कर रहे हैं प्लेन एंड द रिमेनिंग 9 आर ड्रिंकिंग और जो बचे हुए 9 है उसमें से वो क्या कर रहे हैं ड्रिंकिंग
they asked to find out the total number of deer in the herd। उस झुंड में कितने हैं टोटल deer वो पूछा है। let the total number of deer in the herd Vx। कितना लिया अपन ने x लिया उसको। यदि अपन इसको सेपरेट लिखें कि नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, जो चारा चल रहे हैं वहां पे ग्रेजिंग कितने हैं वो इसका हाफ, x का हाफ। तो x का हाफ कितना होगा x/2। फिर इसके बाद नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग नियर बाय, तो हाफ हो गया x/2। तो बचा हुआ हाफ जो है वो कितना होगा x/2। टोटल x है x/2 करेंगे 2x/2 दैट मींस x नियर बाय दैट इज x/2 का 3/4। सो वी गेट 3x/8। कितना मिलेगा 3x/8। उन्होंने बोला था 3/4 ऑफ द रिमेनिंग हाफ, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग हाफ। जे अपन ने x लिया तो x का पर माइनस जब करेंगे हाफ तो कितना आएगा x/2 और इसका x/2 बचा। यदि अपन x/2 प्लस करते हैं सो वी गेट 2x/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा x। अब नंबर ऑफ डियर आर ब्रिंगिंग फ्रॉम द पॉन्ड, कितने ये जो 5 मिले हैं टोटल ड्रिंकिंग वाटर आर 9। अब अपन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का जब अपन टोटल करें तो अपन को क्या मिलना चाहिए x, दैट इज हाफ जो घास चल रहे थे वहां पे x/2, फिर 3x/8 जो कि खेल रहे थे एंड बाकी के जो 9 थे जो पानी पी रहे थे इनका सम करें तो व्हाट वी गेट x। क्या मिलेगा अपन को x मिलेगा यहां से। इसको अपन सॉल्व करें सो x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 माइनस x इक्वल टू -9। यहां से अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8। वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस बाय 4 सो वी गेट 4x। नो नीड ऑफ मल्टीप्लाई हियर सो 3x। हियर वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 8 सो वी गेट 8x। यहां डिनोमिनेटर लिया अपन ने 8, कंबाइंड एलसीएम इज 8 माइनस 9 4 3 7। यहां से सॉल्व करेंगे सो वी गेट -x और -9 इनटू 8 सो वी गेट -x इक्वल -72। यदि यहां से अपन देखें तो माइनस का 8x है और प्लस का 7x है। सॉल्व करने पर -x इक्वल -72, माइनस माइनस कैंसिल किया सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 72। व्हाट वी गेट x की वैल्यू कितनी है 72 और x अपन ने क्या लिया था टोटल नंबर ऑफ हाइट। देयरफॉर the number of height in the number of deer, therefore the number of deer in the herd are 72। अपन ने लिया क्या था x नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। जो हर्ड था उसमें कितने डियर थे उसको x लिया था जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। जो ग्रैंडफादर है वो अपनी ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है और ये भी कहा गया है कि वो उससे एज में कितनी इयर्स ओल्डर है 54 इयर्स। उन दोनों की अपन को क्या निकालना है प्रेजेंट एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। 10 टाइम्स भी है साथ में 54 इयर्स ओल्डर भी है। टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्डर में नॉर्मली अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे। मोर हो ग्रेटर हो ओल्डर हो इन सभी में अपन क्या करते हैं प्लस। तो यहां पर अपन देखें ग्रैंडडॉटर की जो एज होगी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर
डॉटर वी एक्स ईयर, कितनी होगी एक्स ईयर्स, सो द परसेंटेज ऑफ हर ग्रैंडफादर, उसके जो ग्रैंडफादर की एज होगी वो कितनी होगी 10x ईयर, 10 टाइम्स ओल्डर है तो कितनी होगी, टाइम्स में अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ओल्डर ग्रेटर होल में अपन क्या करते हैं प्लस। अब अपन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो उससे एज में 54 इयर्स भी ओल्डर है, जो कि है कितने 10x ईयर के, उनकी एज क्या है 10x ईयर, इसकी x है और साथ में वो उससे 54 इयर्स ओल्डर भी है। तो यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की, दैट इज 10x minus x 54 equal 9x, therefore x equal to 54 upon 9, that is 6। कितनी आ गई x की वैल्यू 6, और x अपन ने लिया किसको था परसेंटेज ऑफ ग्रैंडडॉटर, therefore the present age of granddaughter is 6 years, and her grandfather age is 10 times इसकी 10 is 10 into 6 equal to 60 years, 54 plus 6 और 10x, तो यहाँ से यदि अपन चेक करें तो अपन को मिलेगा 6 plus 54 equal 10 into 6, that is 60 into 60. This will you also verify your answer. Let's see the last question of the exercise. Aman age is 3 times his son age. Aman की एज अपने सन की एज से 3 टाइम है, 10 years ago, पहले 10 साल पहले he was था, कितना था 10 years ago 5 times his son age, उसके सन की एज का कितना था 5 टाइम्स था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। अब यहाँ पर लेंगे पहले अमन की सन की एज, लेट दी प्रेजेंट एज का पूछा है, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन बी या फिर इक्वल एक्स ईयर। तो अमन की एज कितनी होगी, सो अमन की कितनी होगी, सन की एज से कितनी थी प्रेजेंट में 3 टाइम्स। अब अपन देखें 10 इयर्स एबो 10 साल पहले की बात देखें तो जो उसके सन की एज थी, his son's age कितनी होगी, उसकी सन की एज x minus 10 years, कितनी होगी x minus 10 years, और अमन की एज क्या होगी, अमन's एज that is 3x minus 10 years, कितनी होगी 3x minus 10 years। Now we see according to question से था कितना 5 टाइम्स, जो फादर्स के अमन था वो कितना था सन की एज का 5 टाइम्स, दैट इज x minus 10 इयर्स पहले जो था वो कितना था 5 टाइम्स, प्रेजेंट में 3 टाइम्स, दैट इज 3x minus 10 इक्वल टू 5x minus 50। यहां से अपन सॉल्व करें इसको तो 50 minus 10 इक्वल टू 5x minus 3x, दैट इज 2x, और j आ जाएगा अपना 40, so x equal to 40 upon 2, so the value of x is 20। कितनी है x की वैल्यू 20, therefore x अपन ने किसको लिया था, अमन की सन को, therefore the
age of Aman. Let the present age of Aman is 3 into x था, that is 3 into 20, 60 years. कितनी आई? 60 years. And his son age is 20 years. और सन की एज कितनी होगी जो अपन एज ली थी? 20 years. यदि अपन देखें तो 10 साल पहले जो अमन की एज होगी वो कितनी होगी? 50. और उसके सन की एज कितनी होगी? अभी प्रेजेंट में है 20 और 60, 10 इयर्स पहले की देखें तो होगी 10 और 50 जो कि कितनी है? 5 टाइम्स. यहाँ पे अभी अपन देखें तो कितनी है? 3 टाइम्स. और यहाँ पे अभी अपन देखें तो कितनी है? 5 टाइम्स. अगर exercise is finished, hopefully you all are understand what we discussed